અત્યાર સુધી જેટલી મોશન ભણ્યા ને એમાં હરી આવેલો પહેલી આવે પિરિયોડિક મોશન. પિરિયોડિકનો મિનિંગ શું થાય ખબર? એવું નહીં હલાવે. પિરિયોડિક એટલે તું આટા ફેરા કરતો હોય, આ હરીનું ઘર, આ એનું સાસરું, અહીંથી એ ઘરે સાસરે ઘરે સાસરે, રેગ્યુલર ટાઈમમાં તું રિપીટ કરે ને, રેગ્યુલર ટાઈમ ઇન્ટરવલ, હોમથી હોમ. હા, દર 2 કલાકે તું આટા ફેરા કરતો હોય ને, અને એ બરાબર. પછી પાથ તારો કેવો હોય? ફિક્સ હોય કે આજ પાથ પર જાય ને અહીંયા આવે. હા, તો આવી મોશનને શું કહેવાય? પિરિયોડિક. પિરિયોડિકનો મતલબ શું ખબર? તારો પાથ કેવો હોવો જોઈએ? ફિક્સ્ડ. હા, પછી ગમે તેવો હોય યાર, પાથ ફિક્સ્ડ. પછી કોઈ રેફરન્સ પોઈન્ટ, હવે રેફરન્સ પોઈન્ટ તું ગઈ પછી તારા ઘરને જ રેફરન્સ પોઈન્ટ લઈ લે તો એ ચાલે, કે હોમથી હોમ, તને જે બેમાંથી ગમતું હોય તે. તો કેવો હોવું જોઈએ? એક ચોક્કસ પાથ હોવો જોઈએ, ફિક્સ્ડ પાથ હોવો જોઈએ, બરાબર. રિપીટેડ ઇન રેગ્યુલર ટાઈમ ઇન્ટરવલ હોવું જોઈએ, મતલબ ટાઈમ ઇન્ટરવલ એનો ફિક્સ હોવો જોઈએ, બદલાતો હોવો જોઈએ નહીં. અને અબાઉટ ફિક્સ પોઈન્ટ. હવે ફિક્સ પોઈન્ટ એ મોશનમાં તમે ગમે તેને લઈ શકો. તો આવી મોશનને આપણે શું બોલીએ છીએ? પિરિયોડિક. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે પાથ સ્ટ્રેટ જ હોય, જરૂરી નથી. યુસીએમ છે ને, યુસીએમ મીન્સ કે યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન, આ આપણી પિરિયોડિક મોશન છે. ક્યાં કે સ્પીડ કેવી છે? આથી હરેક લેપ, લેપ એટલે ગુજરાતીવાળા ભ્રમણ, સેમ ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં થશે. હરેક લેપ સેમ ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં કમ્પ્લીટ થશે. તો યુસીએમ ધેટ ઇઝ બરાબર પિરિયોડિક મોશન. હું ભણતો ત્યારે આવું પૂછાયેલું. ઇંગ્લિશ લેટર 8, લેટર તો નહીં પણ ઇંગ્લિશ નંબર 8, એની પર કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડથી કોઈ પાર્ટિકલ મોશન કરતો હોય, કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ થી મોશન કરતો હોય તો આ મોશન કઈ? પિરિયોડિક મોશન. કેમ? આ ફિક્સ પોઈન્ટ લઈ લો, અહીંથી પેલો સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે બોલો સપોઝ 2 મિનિટમાં અહીંયા આવે તો બીજું પણ બોલો એ 2 મિનિટમાં જ આવશે, પછી પણ બોલો 2 મિનિટમાં. તો આ મોશનને આપણે બોલીશું પિરિયોડિક મોશન. પછી આવે ઓસિલેટરી મોશન. ઓસિલેટરી મોશન એ પિરિયોડિક જ છે, બટ આમાં પાથ સ્ટ્રેટ લાઈન હોવો જોઈએ. પાથ કેવો હોવો જોઈએ? તો ઇટ ઇઝ પિરિયોડિક મોશન પરફોર્મ્સ અલોંગ સ્ટ્રેટ પાથ. ગુજરાતીમાં શું? સુરેખ માર્ગ પર થતી આવર્ત ગતિ. પિરિયોડિક મોશનને આવર્ત ગતિ કહેવાય. પાથ સ્ટ્રેટ લાઈન જ હોવો જોઈએ. હવે આવે છે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. હવે તમને એમ થાય કે સર આ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન એટલે શું? તો કે આની અંદર એનું એક સ્ટાન્ડર્ડ મેં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. શું સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામ્પલ છે? જરાક જોજો. કે મિસ રિયા, તું આવું કર, એક સ્પ્રિંગ લે. આ જે સ્પ્રિંગ છે ને એ અત્યારે નોર્મલ કન્ડિશનમાં છે. નોર્મલ કન્ડિશન મીન્સ વોટ? નથી એક્સટેન્ડ થયેલી, સ્પ્રિંગ નોર્મલ કન્ડિશનમાં છે, નથી એક્સટેન્ડ થયેલી, નથી कंप्रेस થયેલી. ये जो स्प्रिंग है ना उसके एंड पे, अच्छा ये स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए? मैं SHM पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों ने अभी ऐसा पढ़ा, वो भी आ जाएगी ना. ये नॉर्मल कंडीशन में है. अब इसके नीचे हम जैसे ही एक ब्लॉक अटैच करेंगे, अब यहाँ से 2 बातें हो सकती है. क्या 2 बातें हो सकती है मिस धारा? इधर यू रिलीज कर दे, तू इसे रिलीज कर दे, पहले पानी पी ले, तू इसे तो रिलीज कर दे,
ऐसे छोड़ दे वहाँ से। तो ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा पता है ना? 5th चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हम किए थे ना हमने, वो वाला कितना आएगा? 2mg/k। कैसे आया था, कैसे पढ़ाया था? एक तेरे को पता है, mg फोर्स लगेगा। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी क्या? ये एक्स मैक्सिमम, कौन नीचे ले गया उसको? mg यानी फोर्स। mg कांस्टेंट फोर्स रहेगा, એટલે mg કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ છે ભાઈ, એટલે એણે વર્ક કર્યું સૌમ્ય, કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સથી વર્ક થાય ને મોટા, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपका वर्क कहाँ पे गया? ये वर्क जो किया वो कहाँ पे गया? क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी ज़ीरो थी, यहाँ पे भी वेलोसिटी तो ज़ीरो है। एक्चुअली मैंने ऐसे पढ़ाया था, F(x(m) और स्प्रिंग का फोर्स भी एक वर्क करेगा, डेट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के तो क्या होता है? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरो था, वहाँ पे भी ज़ीरो है। ये स्प्रिंग का जो वर्क होता है ना, वो ऐसे इंटीग्रेशन से किया जाता है, क्योंकि स्प्रिंग उसमें जो फोर्स होता है -kx के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो F(x(m) माइनस स्प्रिंग फोर्स का वर्क यानी kxm², हाँ, डेट इज इक्वल टू डेल्टा के, डेट इज इक्वल टू ज़ीरो। F यानी mg है सौम्य, तो mg(xm) डेट इज इक्वल टू हाफ kxm²। xm यानी 2mg/k। मैंने इन लोगों को ऐसा भी समझाया था, क्या समझा था? कि जो वर्क हुआ ना वो कहाँ पे गया? तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ये समझ में आता है तो काफ़ी अच्छा है। ये भी ठीक है बात। स्प्रिंग का जो वर्क है ना, वो स्प्रिंग में, सॉरी, mg(xm), जो ये mg वाला वर्क है वो किस में गया? स्प्रिंग में कोई एनर्जी में स्टोर हुआ। वो कौन सी वाली एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सही तो यही तरीका होता है। किन्होंने वर्क किया? तो mg नीचे आया। जैसे mg नीचे आया, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगने लगा, तो उसने भी वर्क किया। उसका रिजल्ट क्या है? तो कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो डेल्टा के ज़ीरो। ये सबसे बढ़िया होता है, ये हमारा कंसेप्ट। लेकिन हम इन પ્રેક્ટિસ વ્યવહારમાં આપણે કેવી રીતે યાદ રાખીએ? કોઈ વર્ક કરી ગયું ક્યાં? તો કે સ્પ્રિંગ ખેંચાઈ ગઈ। સ્પ્રિંગ ખેંચાઈ ગઈ તો એમાં કઈ એનર્જી આવી? હાફ kxm²। કોણે ખેંચી? mg। તો mgનું વર્ક એ હાફ kxm²। આવું પણ યાદ રાખી શકીએ, તમને જે ફાવે તે। तो ये कि अगर तू वहाँ से रिलीज़ कर देगी ना तो ऐसा आएगा, लेकिन तेरे को ऐसा नहीं करना है मिस। तेरे को क्या करना है पता है? तेरे को आहिस्ता आहिस्ता, हड़वे हड़वे इसको नीचे लाना है। तो जब इसे हर बार चेक करना है कि गिरेगा तो नहीं, गिरेगा तो नहीं, ऐसे ऐसे छोड़ देना है तेरे को। ऐसे ऐसे तो अगर नीचे जा रहा है तो फिर से पकड़ लेना है, और आहिस्ता 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 उसको ऐसे लाना है कि जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में हो। क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। सपोज कर लो ये डेल्टा एल वाली लेंथ के पास वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम किसका होता है? फोर्स का होता है, आपको पता ही है। सपोज मैंने इसको वाई एक्सिस ले लिया, ये इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है ना, उसे मैंने y इज इक्वल टू 0 ऐसा नाम दे दिया। एक्सिस मेरे बाप की है, मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, ऐसा मैंने पढ़ाया था। आप कोई भी जगह पे ओरिजिन ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब क्या आएगा? यहाँ पे क्या होगा? फोर्स बैलेंस होगा।
कितनी खींची स्प्रिंग, डेल्टा एल। तो रिस्टोरिंग फोर्स 5th चैप्टर में मैंने पढ़ाया था के डेल्टा है। ध्यान, नीचे कौन सा वाला फोर्स लग रहा है, एम जी। अब क्या आएगा, एम जी डेट इज इक्वल टू के डेल्टा है। तो मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा है, एक इक्वेशन ले लूँगा। अब ये जो वाली स्थिति है ना हमारी, उसे मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलूँगा, इक्विलिब्रियम। और ऐसा इक्विलिब्रियम लाने के लिए मैंने क्या किया, आहिस्ता 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 हर बार चेक करता रहा, नीचे तो नहीं जा रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है। और अब नीचे जाने का छोड़ दिया, तब मैंने वहाँ से अपना हाथ हटा लिया। अगर वहाँ से मैं रिलीज़ कर देता तो मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा, 2mg/k। देखो ये डेल्टा एल कितना है पता है, mg/k आया, उसे आधा आया। अगर मैं छोड़ देता तो वहाँ से मैक्सिमम एक्सटेंशन 2mg/k, मैंने यहाँ से छोड़ा तो सॉरी यहाँ पे मैंने रख दिया, इक्विलिब्रियम में है, तो कितना आएगा mg/k, उसे आधा आएगा। अब मेरे को क्या करना है पता है, एक ऐसी मोशन मैं ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये ब्लॉक पीरियोडिक मोशन कर सके। हम कौन सा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, SHM, लेकिन अभी SHM क्या है वो मैंने आपको नहीं बताया, जो बताने जा रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन है ना y = 0, वहाँ से थोड़ा सा धक्का दे दिया भक्ति, हम ऊपर धक्को आप्यो जा। तो वो जैसे ही ऊपर गया, y = 0 से कितनी दूरी पे गया, सपोज इसको मैं पॉजिटिव y है ना, y = y, सपोज धक्का मैं नीचे मारता तो y = -y उसकी पोजीशन कहलाती है। लेकिन कितना ऊपर गया, y। अब फोर्सेस देखते हैं, कौन सा वाला फोर्स सेम टू सेम रहेगा, mg, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला। अब कितनी इनिशियल पोजीशन से हमारी स्प्रिंग कितनी खींची हुई है भाई, यानी इनिशियल पोजीशन थी કેટલી ખેંચાયેલી છે, डेल्टा एल -y है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, के डेल्टा एल -y। अब इसे मैं बोलूँगा डिस्प्लेस्ड कंडीशन। શું બોલીશ આને गुजराती वाला, स्थानांतरित स्थिति। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि जो नेट फोर्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो आपको पता ही है कि दो फोर्सेस है, एक ऊपर एक नीचे है। ये पूरा डेल्टा एल है, इसमें से ये y कम हुआ तो कितनी अभी खींची हुई है, आ इनिशियल पोजीशन है दिख रहा, ત્યાંથી કેટલી ખેંચાયેલી છે, डेल्टा एल -y। અને રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ એટલે શું, કે डेल्टा एल -y। પડી ખબર, સારું, વેરી ગુડ, પૂછી જ લેવાનું હા। ચાલો હવે બે फोर्सेसનું एडिशन, एक ऊपर और एक नीचे, तो हम जनरली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का फोर्स प्लस लेते हैं और नेगेटिव वाई डायरेक्शन का फोर्स माइनस। तो मैं क्या लूँगा कि डेल्टा एल -y, ये तो प्लस हो गया हमारा, और mg क्या हो गया, क्योंकि नीचे लग रहा है। मैंने अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव, हाँ, डाउनवर्ड को मैंने क्या बोला, नेगेटिव। मीन्स कितने बजे ऐसा है, बैठ जाए मेरे बाजू, ये तेरी फिक्स जगह, वैशाखी का बेस લગન મગન નથી લઈ લીધા ને, ક્યાં છે જે ખોટા ધંધા। 4 દિવસની રજામાં છે ને જે ટેમ્પરામેન્ટ હોય ને બધું જતું રહે। ચાલો, के डेल्टा एल -ky -mg। तो के डेल्टा एल यानी क्या लिखा था मैंने, mg लिखा है यहाँ पे देखो, mg -ky -mg यानी क्या आ गया,
માઇનસ કે આવું ફોર્સ લાગ્યું. હવે આ છે ને ફોર્સ માઇનસ છે તો એ શું બતાવે કે આ ફોર્સ ક્યાં લાગે છે? એટલે नेगेटिव આવ્યું बिकॉज वाई આપણો पॉजिटिव છે. तो जब वाई पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? नीचे की ओर. सपोज मैं नीचे ऐसा लेता तो एरिया अगर ये नीचे आता तो हमारी स्प्रिंग ज़्यादा खींचती है ना. तब क्या लिखती तो के डेल्टा एल प्लस वाई नीचे एम जी. एफ नेट क्या आता? के डेल्टा एल प्लस वाई. ऊपर का फोर्स पॉजिटिव और नीचे का फोर्स नेगेटिव. है कि नहीं? तो के डेल्टा एल वो तो एम जी ही है. तो एफ इज इक्वल टू के वाई आता. याद रखना वाई इट सेल्फ क्या है? नेगेटिव. तो जब आप नीचे खींचोगे तो फोर्स तो ऊपर आएगा, वो ऊपर जाएगा ब्लॉक तो फोर्स नीचे आएगा. तब जब वो ऐसे ओसिलेशन करता रहेगा, इसे हम ओसिलेशन बोलते हैं. तो ऊपर जब जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा? y इज इक्वल टू 0. तो उसका नाम दे देते हैं हम. उसका नाम आपको पता ही है, मीन पोजीशन. गुजराती वाला मध्यमान स्थान. मीन એટલે મધ્યમાન. और इक्विलिब्रियम पोजीशन. गुजराती वाला संतुलन स्थान, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता है. थर्ड रेफरेंस पोजीशन, क्योंकि इसके रेफरेंस में ही हम हमारी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे. अगर ये रेफरेंस पॉइंट हट गया तो एक प्रॉब्लम आएगा. उसमें मैं समझाऊंगा कि अगर y इज इक्वल टू 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं है, अगर ये वाला हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम चेंज हो जाएगा. ऐसा भी मैं पढ़ाऊँगा. लेकिन हम हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे रखेंगे? y इज इक्वल टू 0. अब ये जो मोशन हो रही है ना, उसे हम बोलेंगे एसएचएम. जिसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा, ये स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल तो सिर्फ एक नमूना है. हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट ये y इज इक्वल टू 0 यानी क्या? रेफरेंस पोजीशन. हाँ, उसे ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 होता है तो फोर्स क्या आएगा? नीचे की ओर. अगर y लेस देन 0 होता है तो f ग्रेटर देन 0, यानी फोर्स क्या आएगा? ऊपर की ओर. ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? तो कि ये फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज, एक वर्ड में मेरे को बोलना है तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? एक सेंटेंस में अगर बोलना है, चलो एक वर्ड तो नहीं, सेंटेंस. ऐसा नहीं बोलेंगे, रेफरेंस पोजीशन की ओर. कहाँ पे? ये किसको डायरेक्ट कर रहा है? रेफरेंस पोजीशन. ये भी रेफरेंस पोजीशन. ऐसी जो मोशन होती है जहाँ पे एफ वाई के लीनियर प्रोपोर्शन में हो, लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में. वाई नीचे, फोर्स ऊपर, वाई ऊपर, फोर्स नीचे. इस मोशन को हम बोलेंगे एसएचएम. है तो ये पीरियोडिक ही. पीरियोडिक यानी क्या? कि जो मोशन किसी भी पाथ पे रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट होती है, लेकिन पाथ कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड. रिपीटेड इन रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि रिपीट होनी चाहिए वो भी ऐसा नहीं कि तू साइकिल लेके गई बगीचे में, साइकिलिंग करती हूँ, यहाँ पे आया, थोड़ा आराम कर लिया, फिर वापस गई, 2-4 चक्कर मार लिए, फिर यहाँ पे आके खाना खा लिया, तो ये तेरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. हाँ, इसे पीरियोडिक नहीं बोलेंगे. पाथ फिक्स होना चाहिए. दूसरा, रिपीटेड इन रेगुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए और अबाउट फिक्स पॉइंट होना चाहिए. अब सर्कुलर मोशन है, हम सेंटर को फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं. ऐसा भी है, इसको भी फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं. हरी यहाँ पे खड़ा और मैं गाड़ी लेके ऐसे घूम रहा हूँ. हर बार हरी आए तो एक
लैप कंप्लीट हुआ, दूसरी बार आया, दूसरा लैप, तीसरा, कोई भी आप फिक्स पॉइंट रख सकते हो। जनरली हम सेंटर को रखेंगे। अगर यही रिपीटेड मोशन कहाँ पे हुई, स्ट्रेट पाथ पे, तो मैंने क्या पढ़ाया, सिर्फ पाथ स्ट्रेट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम ओसिलेटरी मोशन। क्या? ओसिलेटरी मोशन। स्ट्रेट पाथ पर सपोज करो ये ओसिलेटरी मोशन है, एक वॉल है, यहाँ पे एक बॉल v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है, हर बार इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलास्टिक कोलिजन। तो जैसे इलास्टिक कोलिजन करेगा उसकी स्पीड वैसे की वैसी ही रहेगी। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? l। तो उसका यहाँ से हम इसे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, ए से ए तक आने का टोटल टाइम क्या रहेगा? तो टोटल टाइम यानी इसे बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। तो 2t, अब ये ए से बी का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब v इज इक्वल टू l बाई टी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 बाई वी। तो ये आएगा हमारा पीरियोडिक टाइम। क्या आएगा? पीरियोडिक टाइम। કે સમજ પડે છે? આ ઓસિલેટરી મોશન કહેવાય. કઈ કહેવાય? ઓસિલેટરી. કારણ કે રેગ્યુલર આપણે નિયમ એક જ, ફિક્સ પાથ હોવો જોઈએ, હા, અને સ્ટ્રેટ પાથ, મતલબ કે એ ફિક્સ પાથ પર એની જે પણ મોશન રિપીટ થતી હોવી જોઈએ, રિપીટ જ થઈ છે ને. ઇટ કેન નેવર સ્ટોપ ભાઈ. નીચે બધું સ્મૂથ છે, સૌમ્ય, અને કોલિઝન કેવો છે? ઇલાસ્ટિક છે. तो इट कैन नेवर स्टॉप। तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाता है। પછી मैं बनाया सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें मैंने क्या पढ़ाया आपको? ये भी ओसिलेटरी मोशन है। पहला तो ऐसे है मतलब ओसिलेटरी मोशन, सादा शब्दों में એને ઓસિલેશન કહેવાય। અમે ભણતા ત્યારે નામ હતું ચેપ્ટરનું, ના हमारी पहला आंदोलनों, आंदोलनों गुजराती में ऐसा नाम था, फिर दोलनों कर दिया। दोलनों मीन्स ओसिलेशंस। वो आंदोलन होता है ना जिसमें बाजी ऐसे 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 ट्रांसफर होती रहती है। सपोज खेडूत आंदोलन, तो कोई बार जो स्थितियाँ सरकार की ओर होती है, फिर खेडूत की ओर आ जाती है, फिर से सरकार की ओर, फिर से, उसे इस वजह से आंदोलन बोलते हैं, जिसमें कोई नतीजा नहीं आता। हाँ, कोई नतीजा नहीं आएगा। स्ट्राइक, સ્ટ્રાઇકને મિનિંગ તો બધું એમ બંધ કરી દીધું, પણ આંદોલન એટલે હું કામ કરતા રહેવાનું ને માંગણી કરતા રહેવાની। સ્કૂલમાં ઘણા બધા જે તમે નથી કરતા માંગણી, પણ પૂરી થતી નથી, એમ એને આંદોલન કહેવાય। સ્ટ્રાઇક એટલે હડતાલ, સ્ટ્રાઇકનો મિનિંગ આંદોલન એટલે બસ એમ નહીં, કામ ચલાવે એમ લડ્યા કરવાનું। હા, જો વર ને બૈરી લડતા હોય ને ડાયવોર્સ થઈ જાય તો એ સ્ટ્રાઇક થઈ ગઈ કે હવે છૂટ, હવે ક્યારે લડશે નહીં। પણ રોજ સવારના પેલી ઉઠાડતી વખતે એને ખીજવાતી હોય, ચાલ ભાઈ ઉઠ, પેલા હાંજે આવીને એને ખીજવાતો હોય, પાણી આપ, અને ઘટનાક્રમ રોજ ને રોજ ચાલ્યા કરતા આંદોલન કહેવાય, સમજે? લડાલડી ચાલતી હોય, સવારના બાજી બૈરાના હાથમાં હોય ને હાંજે જમતી વખતે, બરાબર, કે ભાઈ હું બનાવ્યું તે ગચકાઓ એકબીજા પર થયા કરતો હોય, એને કહેવાય આંદોલન। સ્ટ્રાઇક નહીં કહેવાય, સ્ટ્રાઇક એટલે ડાયવોર્સ। તો કેવા કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે હારા, ને પાછળ મને અવાજ ઉદાહરણ કેમ યાદ આવે? તો ધ્યાન આપજો, મને કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી કાંઈ। હવે ચલો ધ્યાન આપજો। એટલે મેં એવું કીધું, અહીંથી તમે જ્યારે આને રિલીઝ કરો ને, તો મેં ભણાવેલું છે ભાઈ, જે હમણાં આવ્યા તે 2 mg કે એનું मैक्सिमम एक्सटेंशन था, पर हमें आहिस्ता 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 ऐसे नीचे ले जाना है, और इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे वो फाइंड करना है। अब इक्विलिब्रियम किसका होता है? फोर्सेस का। नीचे कौन सा फोर्स? mg, ऊपर k डेल्टा है। इसे हमने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन स्प्रिंग की। स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए? तो पहले तो ये स्प्रिंग इलास्टिक होनी चाहिए, ओबेस,
હુક્સ લો, હુકનો લો જે આપણે ભણેલા 5th ચેપ્ટરમાં, અને લાસ્ટ मास लेस होनी चाहिए. अब यहाँ से मैंने धक्का दिया ऊपर ब्लॉक को, फिर छोड़ दिया. हाँ हाँ, હુક્સ લો એટલે આપણે 5th ચેપ્ટરમાં તમને સાહેબે આવું ભણાવેલું કે સ્પ્રિંગ પર ફોર્સ લગાડીએ ને તો આ જે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે ને F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ KX, એક્ઝેક્ટલી એ હુક્સ લો કહેવાય, બટ એ 9th ચેપ્ટરની અંદર આવે, સોરી 8th ચેપ્ટર કે જેમાં તમે આવું ભણો છો, સ્ટ્રેસ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ટ્રેન. આવું કંઈ આવી ગયું? બાકી નથી, ભણશું આપણે. પણ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ KX ઇક્વેશન તો આવી ગયું ને, એને હુકનો લો કહેવાય. આ હુક ભાઈ આપેલું, ડૉક્ટર હતા, હુક ડૉક્ટર હતા. તો mg k ડેલ્ટા, ક્લિયર? હવે અહીંથી આપણે સહેજ વાય જેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરીએ ને तो आ डिस्प्लेस पोजीशन में टोटल फोर्स करना बैठा. तो अब कितनी खींची हुई है स्प्रिंग? तो ध्यान ने मेरे को पूछा था डेल्टा एल माइनस वाई, तो अभी भी रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर की ओर, क्योंकि खींची हुई है. एम जी कहाँ पे लगेगा? नीचे की ओर. तो बोलो नेट फोर्स कितना आया? ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे का फोर्स हमें क्या लेना है? नेगेटिव. ऊपर फोर्स पॉजिटिव, नीचे फोर्स नेगेटिव. तो नेट फोर्स आपको मिलेगा कि डेल्टा एल माइनस वाई प्लस माइनस एम जी. सिंप्लीफिकेशन करो कि डेल्टा एल आपको पता ही है, एम जी लिख लो. एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के वाई, और एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई. फोर्स माइनस वाई के प्रोपोर्शन में हो तो एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है ना, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई. जो कोई भी मोशन ऐसी हो कि जिसमें फोर्स वाई के प्रपोर्शन में और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है? जब आप नीचे खींचोगे ना तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, एम जी तो कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर की ओर. ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे की ओर. ये पॉइंट को आपने 3 नाम दिए: रेफरेंस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन पोजीशन. नियत बिंदु, मध्यमान स्थान, समतोलन स्थान. गुजराती वर्ड इसको क्या बोलते हैं हम? समतोलन स्थान. तो आपको एक वर्ड में पूछा जाए कि ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो आपने क्या बोला? रेफरेंस पोजीशन की ओर, और रेफरेंस पॉइंट की ओर, और मीन पोजीशन की ओर, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर. ऐसी जो भी मोशन होती है उसे हम बोलेंगे SHM. तो मीन्स ध्यान, अगर तेरे को SHM प्रूव करनी है तो यहाँ पे देखना, तो क्या करना होगा? कंडीशन ऑफ SHM क्या आएगी? आइदर फोर्स को या फिर एक्सीलरेशन को वाई के लीनियर प्रोपोर्शन में और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाना है. मैं ऐसा ही करूँगा. अब सपोज कर लो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो ऊपर ए जितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो स्प्रिंग के बारे में पता ही है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी जाएगा. तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है? ए जितना. तो ए को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज अ रेंज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट से कितनी रेंज पे वो जा रहा है. एम्पलीट्यूड ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही लेना है. एम्पलीट्यूड क्या लेना है? एम्पलीट्यूड इज अ पॉजिटिव वैल्यू. कई गधे माइनस एम्पलीट्यूड लाते हैं. एम्पलीट्यूड इज अ पॉजिटिव वैल्यू, एक नंबर है. हाँ, अब हमने इसको y इज इक्वल टू 0 बोला क्योंकि ये हमारी y एक्सिस है. आपको दिखाना पड़ेगा ना कि कौन से टाइम पे वो कहाँ पे है. तो मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, किसी भी टाइम वो कहाँ पे है उसको दिखाना है तो आपको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी. पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट्स. पोजीशन એટલે ગુજરાતીવાળા યામ, स्थान એટલે याम. ऊपर जा रहा है तो बोलो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? प्लस. नीचे जा रहा है तो माइनस. अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है, इसे ये जो पोजीशन है ना उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. पोजीशन को ही क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. यामने स्थानांतर कहीશું ગુજરાતીવાળા.
सपोज T1 टाइम पे उसकी पोजीशन y इज इक्वल टू +y1 है. सपोज y આ આપણું +20, હા, એટલું બધું ના આવે, +10 અને આ +2 લખી દો, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है T1 टाइम से? +2. सपोज ये +7 है, +7 यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो आपको लिखते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा T2 टाइम पे? +7. ऐसा नहीं करना 7 - 2 5, जो कोऑर्डिनेट दिखे वही उसका डिस्प्लेसमेंट. सपोज T3 टाइम पे यहाँ पे -5 पे है, तो T3 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? -5. 5 नहीं, -5. कोऑर्डिनेट बोलो એટલે डिस्प्लेसमेंट. सपोज T4 टाइम पे -10 है, डिस्प्लेसमेंट कितना? -10. तो जो कोऑर्डिनेट्स है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ऊपर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा कोऑर्डिनेट्स. हाँ, જે યામ છે તે ભાઈ સ્થાનાંતર ગુજરાતીવાળા. અહીંયા આમ નહીં કરતા, આમ કર્યું, આ અહીંયા હતું પહેલાં, પછી અહીંયા ગયું, આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. અલા તું તારા ઘરે હતી, પછી મારા ઘરે આવી, આ તારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. આવા ધંધા કરવાના નથી. सिर्फ जो पोजीशन दिखे उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. પડી સારું કે નહીં પડી? આ આપણે લેવાનું છે. હવે આ ઇક્વેશનમાં મારે જાણવાની તો ઈચ્છા થાય ને મિસ. શું જાણવાની ઈચ્છા થાય? કોઈ પણ આપણું, ચાલ ભાઈ, પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન હતું, મેં ઓબ્જેક્ટને અહીંથી થ્રો કર્યો, હા, એનો ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ 10 સેકન્ડ છે, તો મને કંઈ પણ એમ જાણવાની ઈચ્છા થાય 5 સેકન્ડે ક્યાં હશે, હા, કેટલી વેલોસિટી હશે, કેટલું એક્સિલરેશન હશે, કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હશે, કેટલી હાઇટ પર હશે, 7 સેકન્ડે ક્યાં હશે, 3 સેકન્ડે ક્યાં હશે. બધું જાણવાની ઈચ્છા થાય ને? હા, જાણવું જ પડે તો જ માર્ક આવે. એમ તો આપણને કોઈ જ ઈચ્છા નહીં થાય, મને ખબર છે. તો અહીંયા પણ એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે ભાઈ આવું SHM થતું હોય તો ફલા ફલા ટાઈમે वो कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक्सीलरेशन होगा, फोर्स लग रहा है तो होगा ही होगा, वेलोसिटी होगी, कब वो मुड़ के आएगा, वेलोसिटी 0, बट ये तो 2 जगह पे होती है, ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से मुड़ेगा, नीचे से मुड़ेगा. हाँ, ऐसे जानने की हमें कुछ ख्वाहिशें होती है, वैसे तो कभी नहीं होती है. तो उसे जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वेशन होना चाहिए. तो ये ऐसी मोशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा y, अब डिस्प्लेसमेंट तो बोलो वेरिएबल ही होता है, टाइम के साथ बदलता ही रहता है. यहाँ पे वेलोसिटी भी टाइम के साथ बदलती रहेगी. कैसे बदलती रहेगी? वहाँ से मुड़ के आ रहा है तो वहाँ पे स्पीड 0 होगी. देखो, नीचे से भी मुड़ के जा रहा है, स्पीड 0, तो बीच में तो कुछ स्पीड होगी ही होगी. तो यहाँ पे स्पीड भी बोलो टाइम के साथ वेरी होगी. एक्सीलरेशन, तो ये भी बोलो टाइम के साथ वेरिएबल होगा. कैसे? बीच में फोर्स 0 था, पता है आपको? यहाँ पे नेट फोर्स 0 था. अब नेट फोर्स 0 होगा तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी 0 होगा. तारी यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगा. कैसे? कि वो y है, y इज इक्वल टू ये लिखो. तो जैसे जैसे y चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. तो ये ऐसी मोशन है कि जहाँ पे y, v और a तीनों वेरिएबल्स, अला भाई गुजराती वाला, ત્રણે ચલો છે, चलो नहीं चलो, हाँ. तो ये तीन वेरिएबल है, ऐसी ये मोशन है. अब मेरे को क्या, ये सब फाइंड करने के लिए इसका इक्वेशन चाहिए. जैसे कि ये सब फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन था tan θ 0x - gx² / 2v0² cos² θ 0. ऐसे ऐसे इक्वेशन होते हैं आपके पास. तो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन मिलने चाहिए.
तो ये इक्वेशन कैसे मिलेंगे वो समझाने के लिए मैं आपको यूसीएम और एसएचएम समझाता हूँ. क्या? यूसीएम અને એસએચએમ. જોઈએ, મને તો એટલી ખબર પડવી જોઈએ કે મારે ભાઈ કોઈ મોશનને એસએચએમ પ્રૂવ કરવી હોય ને, જો વાય ડિરેક્શનમાં થતી હોય એ મોશન, તો એ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ વાય ગમે ત્યાંથી આવવું જોઈએ. એક્સ એક્સિસ પર થતી હોય તો એ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ગમે ત્યાંથી જેમાં આવવું આવે તે એનું इक्वेशन કહેવાય. હવે ચેક કરીએ કે મેં यूसीएम पकड़ी है. तो यूसीएम में क्या होता है पता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमारा पार्टिकल एक सर्कल पे विथ कांस्टेंट स्पीड घूमता रहता है. कहाँ पे घूमता रहता है? सर्कल पर कांस्टेंट स्पीड थी ये फरतो रहे. इसकी स्पीड कांस्टेंट है. तो मैंने ऐसा पढ़ाया था कि सपोज t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये यहाँ पे है. कौन? सर्कल घूमता हुआ पार्टिकल. इसे हम आज बोलेंगे रेफरेंस पार्टिकल. कहाँ पे है ये रेफरेंस पार्टिकल? P से उसने स्टार्ट किया हुआ. मैंने जब देखा वो t इज इक्वल टू 0. पता है ना, t इज इक्वल टू 0 यानी पूरी सृष्टि की रचना हुई वो टाइम नहीं, जब से मोशन आपने ऑब्जर्व किया वो टाइम. मैंने जैसे देखा तो वो यहाँ पे था. अब मैंने पढ़ाया था आपको एंगुलर पोजीशन तो भी थी. एंगुलर पोजीशन यानी क्या? ओपी को आपको ज्वाइन करना है. एक्स आपकी रेफरेंस डायरेक्शन कहलाती है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप हमेशा क्या लेते हो? रेफरेंस डायरेक्शन. गुजराती वाला संदर्भ दिशा. तो ओपी ए एक्स एक्सिस સાથે કેટલો એંગલ બનાવ્યો? फाई. ओपी ए एक्स एक्सिस સાથે કેટલો એંગલ બનાવ્યો? फाई. ઓપી નો એક્સ એક્સિસ સાથેનો એંગલ फाई છે. ખબર પડે તમને? આ फाई ને પી નું એંગ્યુલર પોઝિશન કહેવાય. પીનું એંગ્યુલર પોઝિશન, સપોઝ આ 30 ડિગ્રી છે હરી, તો 30 ડિગ્રીને શું કહેવાય? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટાઈમે પીનું એંગ્યુલર પોઝિશન, કોણીય સ્થાન. ગુજરાતીમાં एंगुलर पोजीशन मतलब कोणीय स्थान. सही है. चलो, थोड़ी देर के बाद देखा तो ये क्यू के पास था. कितने टाइम के बाद देखा? टी इज इक्वल टू टी. तो ये बोला जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा थीटा डेट इज इक्वल टू, चलो डेल्टा टी कितना आएगा? टी, तो ओमेगा टी. तो ये आ गया ओमेगा टी. अब क्यू से पूछते हैं, क्यू ने पूछिए गांडा तारू एंग्युलर पोजीशन કેટલું? तो कि बहुत सिंपल, ओ क्यू ने जोड़ दो. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करो, कितना आया? ओमेगा टी प्लस फाई. इसे मैं बोल दूंगा थीटा. तो ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? थीटा. बोलो. थीटा एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट क्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू टी. अब मेरे को ऐसा थोड़ा दिमाग में बत्ती जली. मैंने क्या किया? पी से वाई एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन लिया. प्रोजेक्शन मतलब लंब लीधो, लंबपाद लीधो, प्रक्षेप लीधो. गुजराती में प्रक्षेप कहवाय. पी नो प्रोजेक्शन लीधो, पी वाई. टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल, वो सर्कल वाला पार्टिकल पी पे था तो प्रोजेक्शन पी वाई पे था. टी इज इक्वल टू टी टाइम पे वो क्यू पे आया तो प्रोजेक्शन कहाँ पे आया? क्यू वाई. और तारिये तो ऊपर गए. फिर जब वो यहाँ पे गया तो ये दोनों मिले, जब दे मेट, फिर ये वापस नीचे आने लगा. कौन? सर्कल वाला पार्टिकल. तो ये भी नीचे आया.
अरे हाँ के ना, वो यहाँ पे गया तो ये वाला पार्टिकल भी अब नीचे आने लगा। अरे यार, तो ये यहाँ से कितना ऊपर गए? तो सपोज कर लो इसकी रेडियस ए है, ए, तो ये बोलो y इज इक्वल टू प्लस ए, वहाँ से मुड़ा, हाँ मुड़ा, फिर वापस नीचे आए। ये अगर नीचे जाएगा इधर जाएगा, तो ये भी बोलो अपनी मोशन नीचे की ओर ही स्टार्ट रखेगा। ये जब इधर आएगा वो सर्कल वाला पार्टिकल, ये भी यहाँ पे आएगा, ये ऊपर जाने लगेगा ऐसे, तो ये भी बोलो ऊपर ही जाएगा। हाँ के ना? ખરી સમજ પડે છે તને એલા કંઈ? હે થોડી થોડી નહીં બોલતો, થોડી થોડી બોલ પડે તો કાં નથી પડતી? બોલ ને મિત્ર. અરે તે રાયલો નથી, તે અહીંયા શું હાલતું છે? નાચગાન છે, રંગારંગ પ્રોગ્રામ ચાલતો છે. સ્કૂલના ભરોસે નહીં બેસતો તું યાર દોસ્ત. તને ખબર પડે છે કે પેલો આમ જાય તો ઉપર જાય? હા, સ્કૂલમાં તો બધું ભગાઈ દે અત્યારે, કદાચ આવે પણ નહીં, નક્કી નહીં. સાચું, હું માયામાં નહીં રહેતો ત્યાં, એટલે તને કહેતો છું આ જગ જોજે તું. તો ધ્યાન આપજો, આ ઉપર જાય તો આ ઉપર જાય છે ક્યાં? સમજ નંબર પૂછજે મોટા, થોડી થોડી नहीं, आप पाड़वानी है बद्दी, पूरी જ पाड़वानी. मैंने क्या समझाया पता है तेरे को? एक सर्कल पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और उसका मैंने क्या लिया, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन. जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ये वाई वाला प्रोजेक्शन भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो वाई वाला प्रोजेक्शन भी नीचे आएगा, ये वापस ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाने लगेगा, है कि नहीं? इसकी रेंज देखो, y इज इक्वल टू प्लस ए से y इज इक्वल टू किसकी? y एक्सिस के प्रोजेक्शन, उसकी रेंज शायद ये SHM हो सकती है, लेकिन SHM कब होगी? ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y होगा. तो देखते हैं, चलो समझो. ये जो है t इज इक्वल टू टी पे, ये कितना है? ये एंगल थीटा है हमारा पूरा, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू एक कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ए साइन थीटा. अरे यार, ये आ जाएगा हमारा ए साइन थीटा. टाइम के साथ ये भी अपनी जगह बदल रहा है, हाँ के ना? ये पार्टिकल तो अपनी जगह बदल ही रहा है, लेकिन टाइम के साथ ये वाई वाला प्रोजेक्शन भी अपनी जगह बदल रहा है. तो देखते हैं, चलिए क्या देखते हैं. वाई जो प्रोजेक्शन था उसका इक्वेशन क्या मिला? ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई. मेरे को क्या लाना है? एक्सीलरेशन. पहले मैं वेलोसिटी लाता हूँ, वेलोसिटी dy बाई डी टी, ए कॉन्स्टंट, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस वाई. भाई जेने डेरिवेशन नहीं आवड़तुं ते डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स અને ડી બાય ડી એક્સ ઓફ કોસ એક્સ, આ બેમાં જ રમવાનું છે. સાઇનનું ડેરિવેટિવ કોસ, પણ અહીં એકલું ટી જ હોવું જોઈએ કે इंस्टेड ऑफ टी पूरा गांव समाया हुआ है, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस टी ने बदले जो है पाछू डेरिवेटिव. चलो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डी बाई डी टी ऑफ टी एटले 1 फाइव 0 पड़ी. फाइव कॉन्स्टंट है, टी नु 1, ओमेगा आगे आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस. मेरे को एक्सीलरेशन लाना है, डी वी बाई डी टी, ए ओमेगा कॉन्स्टंट. हाँ, एक मिनट, डी बाई डी टी ऑफ कॉस, कॉस नो डेरिवेटिव, ફરી પાછવાનું કરવું પડે ને હરી. તો જોજે મિત્ર,
ओमेगा आ जाएगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस मिस जयती बराबर है ए तारी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाई। चलो खुशखबरी मिल गई, बेटा आया ऐसा नहीं कही, हाँ तो खुशखबरी मिल गई, ए इज प्रोपोर्शनल टू वाई। જે ખુશખબરીની રાહ જોતા હતા આપણે, કોઈને ત્યાં બાળક આવે જે આનંદ થાય તે આપણને થવો જોઈએ. આપણે બાળક નથી લાવવાનું, પણ એ આનંદ થવો જોઈએ કે ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ -1. પણ ક્યાંથી આવતું હશે મને ખબર નહીં, પણ બેઠો રે રાત્રે આવું અમુકને કીધું, પેલા હરીને કીધું હોય, માંડવો પડ્યો નહીં આવ્યો, કાલે કેમ નહીં આવે, ટ્રાય કલર ઝાડા થઈ ગયા તમે ભાઈ. હવે એ શબ્દ કાંથી આવ્યો તે મને પછી ખબર પડે, તો ટ્રાય કલર ચાલુ કરી દીધું. ઓકે, પાછું બધા બેઠેલા હોય તો એ મને દેખાય નહીં, એકલો હરી જ દેખાતો હોય. તું હરી દી ત્યાં છે હરી. આજે આવેલો તો એકદમ કાળો થઈને આવ્યો. હું કહે કે ભાઈ 4 દિવસ તને કોઈ તડકે સૂકવી નાખ્યો તો ઉત્તરાયણમાં આખો કાળો તમે જોયેલો આજે કેવો દેખાતો હતો. આમ ઓર્ડિનરી એમ જોતો તમને લાગે કે નહીં કે આ છોકરો આટલો કાળો થઈ ગયો, હફસી પાવડર લગાડીને આવ્યો એવો લાગતો હતો આજે. તો 26 જાન્યુઆરી આવે તો એટલે તો ટ્રાય કલર બહુ યાદ આવે. અચ્છા, તો સર આજે તો ઘણા બધા રંગીલા સાથ એનો મતલબ એવો કે મરવાનો સમય આવી ગયો. કોને હું કઈ ઉધરસ આવે એટલે માણસો કહેતા ને કે મરવાનો સમય આવે, ઉધરસ આવે, તો એ લોકોને આવી ગયો છે. એવું ખબર નહીં મને ભાઈ, મને કાલે જ આવેલી પણ હું તો જીવવાનો છું. હવે કાલે 4-5 કલાક ભણાવ્યા ને પછી બહુ ઉધરસ આવે. ચાલો તો જગ ધ્યાન આપજો ભાઈ, ખુશખબરી જે જોઈતી હતી મળી ગઈ. હું પ્રોજેક્શનને કહી દઉં ગાંડા તારી રેન્જ કઈ, तो प्रोजेक्शन शू कैसे, मैं y इज इक्वल टू प्लस ए से y इज इक्वल टू माइनस ए पे घूम रहा, तू भी मोशन में है तो क्या हाँ, कहाँ से कहाँ तक, प्लस ए से माइनस ए. जब तू ऊपर जाएगा ऊपर तो तेरा एक्सीलरेशन नीचे ही आएगा. कैसे पता चला नीचे ही आएगा, देखो मैंने क्या प्रूव किया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. वाई अगर पॉजिटिव होगा तो ए नेगेटिव, वाई नेगेटिव होगा तो ए पॉजिटिव. यानी यार तू सही में किसी की मोशन दिखा रहा है. किसकी, जो स्प्रिंग के एंड के साथ जुड़ा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट था ना, हाँ उसकी, लेकिन उसे तो हमने नाम दिया था SHM, तो यही SHM का इक्वेशन हो गया. कौन सा वाला, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. लेकिन सौम्य यहाँ पे दोहरी खुशी हमें मिली है. આપણે શોધવા ગયા તો એકને મળી બે, જો दोहरी खुशी मिलेगी, बेवड़ी खुशी મળે. જો બેવડી ખુશી તો યાદ આપજો, મને મળે સ્ટ્રાઇક. તો कैसे वो बेवड़ी खुशी केवी रीते मळे, जो तू भाई आनु एक्स एक्सिस परनु प्रोजेक्शन तू जोई ने, आनु एक्स एक्सिस परनु प्रोजेक्शन, ओ बाप रे तू भी घूम रहा है ऐसे. ये जैसे इधर जाएगा ना इधर, तो एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन बोले इधर जाने लगेगा. देखा, ये इधर गया तो ये इधर आया, फिर ये इधर आया, देखना देखना, तो ये भी इधर जा रहा है, फिर इधर आएगा जब दे मेट, हाँ
कहाँ तक गया? -a तक। फिर ये वापस ऐसे मुड़ने लगा, ये इधर आया तो ये वापस ऐसे जाने लगा। हाँ, यहाँ पे भी वो ऐसे जा रहा है। यहाँ पे जब जाएगा, है कि नहीं? कौन सा वाला प्रोजेक्शन? एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन। ये एक्स एक्सिस वाला दिखा रहा हूँ। इधर आएगा तो ये भी बोला ऐसे भी जा रहा है। वापस यहाँ पे आएगा तो इसने एक अपना कंप्लीट ऑसिलेशन किया, तो इसने भी बोलो सॉरी एक चक्कर कंप्लीट किया, एक રોટેશન કમ્પ્લીટ કર્યું, તો આણે પણ શું કર્યું? એનું એક ઓસિલેશન પૂરું. એક ઓસિલેશન મતલબ શું? જો અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય ને તો અહીંયા જાય ને ફરી પાછો અહીંયા આવે. વાય એક્સિસ પર સપોઝ અહીંથી સ્ટાર્ટ થયો, અહીંથી ઉપર જાય, નીચે જાય, ફરી પાછો અહીંયા, અને શું કહેવાય? એક ઓસિलेशन. ओ तारी, तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन भी क्या कर रहा है? ओसिलेटरी मोशन. और इसका भी अगर आपने इक्वेशन लिखा, क्या आया था इक्वेशन? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. इसका भी डेरिवेटिव निकालो. कौन बोलेगा डायरेक्टली? बोल. माइनस ए ओमेगा, ए कॉस से कॉस साइन ओमेगा टी प्लस एरिया पड़ी कॉसનો ડેરિવેટિવ માઇનસ સાઇન. વેરી ગુડ. ચિંતા નહીં કરતી, આપણે પાછા મેથેમેટિકલ ટૂલ્સ માટે મળવાનું જ છે વેકેશનમાં. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીવી બાય ડીટી માઇનસ એ ઓમેગા સ્ક્વેર કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ. પણ એ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5x છે ને, તો શોધવા એકને ગયા હતા, મળ્યા બે, તો બંને એસએચએમ છે. એનો મતલબ કે યુસીએમ પરથી જ તમને શું મળી ગયું? એસએચએમનું ઇક્વેશન. હવે આ જે ઇક્વેશન છે સ્કૂલમાં તમને ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન જ કરાવેલું હોય. ક્યાંથી આવ્યું, કેમ આવ્યું, શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, મેં ગઈકાલે જ કીધું 12મા વાળાને કે હવે તમે જે ભણો છો ને એને નીડ ભણો. આપણી નીડ છે. કોઈ ચેપ્ટર વાંચતા હોય તો એ નીડ છે, એને આર્ટિફિશિયલી નીડમાં કન્વર્ટ કરવાનું. કદાચ તમને કીધું હોય કે હું ભણું છું શા માટે, કે ભાઈ આ ભણ્યું છે તો આ મળશે, આ મળશે તો માર્ક મળશે. છેલ્લી નીડ તો માર્ક જ હોવી જોઈએ. સમજ્યા? એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. હવે આમાં જે ટર્મ છે એ, તો એને તો મેં કહી જ દીધું છે. વાયને શું કીધું? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी. वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, बट ये जो आया ना उसे मैंने अभी बोला था वहाँ पे एंगुलर पोजीशन. यहाँ पे मैं बोलूँगा फेज एट टाइम टी. अरे वाँचीने जाओ जो पूछीश तो पहला पूछवा. કોને? દેવાંશી ચાલી ગયું તારે? અચ્છા, એ ચાલુ કર્યું. એ કે સોલિડ ચાલુ કર્યું. આજે વાંચી લીધો. જ્યારે ત્યારે તમારે ચાલશે ને ત્યારે તમે બહુ આગળ, તમે બહુ ખુશ થઈ જાઓ. તમને ખબર છે અમારા ટેસ્લાવાળા જે છે ને અહીંયા સ્કૂલમાં, એ ફિઝિક્સમાં એમ લેકમાં ચાલતા. આ ચેપ્ટર જે કદાચ આપણે ભણીએ ને એવું કદાચ કોઈ નહીં ભણતું હોય, આખા ગુજરાતમાં નહીં ભણતું હોય. લખીને આપું ચાલો, કે યુટ્યુબ પર પણ એવું નથી. તો એ લોકોનું એસએચએમનું પેપર આવ્યું. એ પેપરમાં આપણાવાળા બધા હાઈએસ્ટ. એકાદ બે ભૂલ કરી તે ખીજવાય, એવું એ થવી જ નહીં જોઈએ. પણ બીજા બધાના અડધા જેવા માર્ક, ને આ લોકોના હાઈએસ્ટ. હાઈએસ્ટ એટલે કે 180માંથી 172. એક હતું હાઈએસ્ટ 175. તો હવે એ લોકો ખુશ થઈ ગયા. 175 ત્યારથી હવે પાછા એ લાઈનમાં આવે. એટલે એક પેપર સારું ગયું હોય એ આપણને ઇન્ટરનલ મોટિવેટ કરી નાખે. સમજે? તો આ ચેપ્ટર એવું છે, એ તમને ઇન્ટરનલી મોટિવેટ કરે. તમે જોજો, આ ચેપ્ટર ઘણા નથી આવતા. ફેઝ એટ ટાઈમ ટી. તો તમે જરા વાંચવામાં ધ્યાન આપજો. આમ તો આપણે રેકોર્ડિંગ તો હોય જ છે, પાછા ભૂલી જાઓ ત્યારે. ચલો, ફેઝ એટ ટાઈમ ટી કહેવાય. ફેઝ ગુજરાતીમાં કહેવાય કળા.
ટી સમયે શું કહેવાય એને? टी समय कड़ा जो समझो t इज इक्वल टू 0 पे जब ये था तो उसका इनिशियल फेज क्या था? 5. इनिशियल फेज शो तो 5 कोनो y नो आ py नो और px नो पण इनिशियल फेज शो कहेवाय 5. x वाळું હોય કે y વાળું ઓસિલેટર જે ઓસિલેશન કરે તેને શું કહેવાય? મિત્રો તમારે ચાલી ગયું છે સ્કૂલમાં ધારા इसको बोलेंगे हम ओसिलेटर. अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मैं बोलूँगा सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर. क्या बोलूँगा? सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर. जो ओसिलेशन करे तेने ओसिलेटर कहेवाय. सिंपल हार्मोनिक है तो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर. गुजराती वाला सरल आवर्त दोलक स आदो. शो बोला है स आदो सरल आवर्त दोलक. अब कहाँ पे है ये? t इज इक्वल टू 0 पे तो वो पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है, रेफरन्स पार्टिकल की जो एंगुलर पोजीशन है एने आ पी वाय के पी एक्स नी फेज के नाम है फेज छे एंगल ज. टी इज इक्वल टू टी टाइम क्यू नु एंगुलर पोजीशन है ओमेगा टी प्लस 5. एंगुलर पोजीशन कोणीय स्थान. જ્યારે QI અને QX નું શું કહેવાય? ફેઝ. QI અને QX નું શું કહેવાય? ફેઝ. સમજે? ફેઝ ક્યાંથી ગણવાનો? ફેઝ એટલે એંગલ. કોનો ગણવાનો? જે સર્કલ પર ફરે તેનો. પછી એને જ પેલા QI ગણો કે QX ગણો એનો શું બોલાય? ફેઝ. આવડી જાય? અચ્છા, ઓમેગાને તમે એંગ્યુલર સ્પીડ કહેતા. શું બોલતા? તો આને જ SHOની સિમ્પલ હાર્મોનિક ઓસિલેટરની बराबर एंग्युलर फ्रीक्वेंसी कहेवाय. शू बोला है? एंग्युलर फ्रीक्वेंसी. इसके बारे में आपने ऐसा लिखा था ओमेगा 2π/t और 1/t एटले f यानी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ओसिलेशन नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितना रोटेशन थाय ते. तो आने एंग्युलर फ्रीक्वेंसी बोलीशू. QI के QX नी एंग्युलर फ्रीक्वेंसी. F ने बोलीशू फ्रीक्वेंसी. F मतलब शू? नंबर ऑफ ओसिलेशन्स. हवे नंबर ऑफ ओसिलेशन्स पर सेकंड. पेला में नंबर ऑफ रोटेशन कहता है, अहींया SHM में शू बोलवानुं? नंबर ऑफ ओसिलेशन्स. सारूं, तो शू कीधुं मैं तमने? ओमेगा एटले एंग्युलर फ्रीक्वेंसी हरी कोणीय आवृत्ति. ओमेगा इज इक्वल टू 2π. एफ ने बोलाय खाली फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी एटले नंबर ऑफ ओसिलेशन्स पर सेकंड. आवड़ी जाए मोटा? थोड़ું થોડું ને પૂરું ભણજે ભાઈ. તારે કયું ચાલે? તારે કયું ચેપ્ટર ચાલે? રે ઓપ્ટિક્સ જોયું? હવે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટમાં આવે ને બાપો ભણાવવાનો. એંગ્યુલર SHM આવશે. પૂછો પૂછે જુઠ્ઠું બોલતો છે ને. ડાયપોલ. ડાયપોલ નહીં, ડાયપોલ એવું આવશે. ડાયપોલ. હા, તો એ ડાયપોલ આવશે. હવે ત્યારે ખરેખર ડાયપોલની અછત થાય કે ભણ્યા વગર તમને ગોખા. એવું કેવું કેમેસ્ટ્રીમાં? ડાયપોલ. વેરી ગુડ. હા બસ એવું એવું જ આવશે. કેમેસ્ટ્રીનું એનું હરખું જ છે બે શ્રીજા. अलग છે. वो डायपोल बंद आता है, बॉन्ड आता है. डायपोल H2O નો डायपोल बॉन्ड કહેવાય. ચાલો આટા મૂકી દીધા છે કે આપણે અહીંયા આટા મુકાઈ દીધા છે. અમારે એ નથી ભણાય. બેઠી કોપીમાં રહેવો છે. આ લોકો જે કરે ને GM વાળા, હવે એ બધા એન્જિનિયર જે લોકોને SHM તો નીડ કહેવાય. હવે એ એન્જિનિયરને SHM જ નહીં ખબર હોય તો કોલેજમાં પછી SHM થાય.
એટલે ભણી લેજે ભાઈ. હા, હવે આશા ભૂલી જવાની એ ચલવે. ક્યાંથી રોટેશનલ લોલવી કાઢ્યું? બસ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા, એ મોમેન્ટ હવે પૂરી છે. ત્યાં તૈયાર કર્યું પછી મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા પછી ત્યારે ને મારે ત્યાં પરીક્ષા આપવાની હવે આ બધા ચેપ્ટરની. ઓમેગા 2πf એફ ફ્રીક્વન્સી. અચ્છા, ફાઈને શું કહેવાય? ફાઈને ઇનિશિયલ ફેઝ કહેવાય ગુજરાતીવાળા. હા, તમને આ ફેઝ પરથી તો એવું શું મળ્યું? આ ફેઝ પરથી આપકો ક્યાં મિલેગા? फेज एट टाइम टी थीटा ओमेगा टी प्लस 5. तो आप क्या पढ़ रहे हो अभी? SHM. हमारा जो पार्टिकल है वो y इज इक्वल टू प्लस है और y बराबर माइनस है के बीच में ऐसे जा रहा है. एक कोई टाइम ये यहाँ पे इस पोजीशन पे ये है, मोशन में है. किस डायरेक्शन में जा रहा होगा मिस? ऊपर. ऐसा थोड़ा नीचे भी आ सकता है. એની વેલોસિટી જે 0 થશે ત્યારે તે નીચે આવે. અલા ભાઈ પણ અહીંયા છે મેક્સિમમ હાઈટ અટેન્ડ કરી લેશે પછી. મેક્સિમમ હાઈટ નહીં આવે મીસામાં કન્સેપ્ટ. ડિસ્ટન્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એન્ડ મેક્સિમમ અટેન્ડ કરી લેશે. એવું નહીં, અહીંયા છે તો તું ક્યાં બતાવીશ એને? ક્યાં જતો બતાવીશ? ઉપર. કેમ નીચે આવે જ ને? જો આમ હોય, આમ જતો હોય તો એ ઉપર જતો હશે, પણ જો અહીંયા હોય તો પેલો अल्लाह भाई चक्कर ऐसे आपको दिखाना है. हाँ, मारो बात थोड़ा पड़े. जग जो भाई आ चक्कर से ना आम जुआ आवाय ने आम અહીંથી આમ ઉપર. अच्छा आपके बाजू आम समझ पड़े? आम आम आम. अच्छा आम है ना आम આવી રીતે જોવાના. અમારા આંગણા બદલાઈ આમ હોય ને તો અહીંથી આમ જતો હોય આમ તો આની વેલોસિટી ઉપર હશે, પણ આ બાજુ આવતો હોય તો આ જ પોઝિશન પર એની વેલોસિટી ક્યાં હશે? નીચે હોય કે? તો હું તમને એમ કહું કે તું હવે શું બોલી ખબર? ऊपर जाए तो ऊपर ક્યાંથી જવાનું? वो नीचे भी आ सकता है कि नहीं? वो ऐसे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है. तो उसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फेस. हाँ, क्या चाहिए? सपोज इसका फेस 45 डिग्री है. रिया 45 એટલે फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये कहाँ पे जा रहा होगा? ये वाई एक्सिस वाला कहाँ पे जा रहा होगा? ऊपर की ओर. सपोज उसका फेस 135 डिग्री है तो तमने तरत खबर पड़से वो नीचे आ रहा है. सपोज 225 डिग्री है. हाँ, कहाँ पे आ रहा होगा? अरे भाई नीचे आ रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि अभी उसको नीचे मिलना बाकी है. फिर 315 डिग्री है. कितना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये ऊपर जा रहा है तो इसे भी कहाँ पे जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर. पेन मूकी दे तो पेन मूकी. चल तो पेन ने उछाड़ा तो पेन आपने उछाड़ी दे. खोटो खोटो टीक करावे. जोजे પૂજામાં રાખવાનું. પરીક્ષા આવતી તો મહિનો તો પેન પૂજામાં રાખતો રોજ. સાચું કસમ ક્યારે મહિનો પેન રાખતો દેવસ્થાનમાં જ્યારે 12માં હતો ત્યારે. પેન પેન મારી એક્ઝામ હતી બોર્ડની 10માની 12માની તો એ પેન અને રોજ એક એક ઓમ લખતો. ઓમ
એમ ઓમ લખું અને મૂકી દઉં કે વપરાઈ જાય તો હવે તો ધ્યાન આપજો. कहीं खबर पड़ी तो फेस से हमें क्या पता चलेगा? एक तो पोजीशन खबर पड़े. ચાલો હવે તમને કહી દઉં, પેલા કાલે વાત કરી દેજે. 135 ડિગ્રી ફેસ છે. ચાલો મારે એ જાણવું છે વાય એક્સિસ પરનું ઓસિલેટર ક્યાં હશે? વાય એક્સિસ પરનું ઓસિલેટર ક્યાં હશે? બોલો અહીંયા હશે, અહીંયા. अला वाई एक्सिस वालों અહીંયા હશે. कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा? चलो 335 डिग्री है तो यहाँ पे आएगा 335. हाँ के ना? आम जतु हशे એટલે આને આપણે एंटी क्लॉकवाइज જ ફેરવવાનું. तो वाई एक्सिस वाला बोलो यहाँ पे होगा, पोजीशन मिल गई और डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल गई. सेम टू सेम एक्स एक्सिस वाले के लिए भी हम कर सकते हैं. 135 डिग्री अथवा 135 डिग्री कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस वाला यहाँ पे. किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? अलाम अलाम એટલે મેં આંગળા કીધા, આંગળા આમ જાય છે, આમ જાય તો એ આમ જાય છે. હું पॉजिटिव अला वो मिलने वाले हैं, वो अभी बिछड़ के चले गए तो ऐसा होगा. अब यहाँ पे जाएगा. अला समझो नहीं यार, चकरડા પાડવા. તું તારું જો કામ કર. તો આ લોકો આટા મૂકી દે. चलो અહીંયા છે તો एक्स एक्सिस वाला क्या હશે? एक्स एक्सिस वाला क्या हसे? आम जतु हशे, क्योंकि यहाँ पे आके मिलने वाले हैं ना. अने मैं एम कीधुं ते आम याद रही के नहीं? आम डायरेक्शन याद रही के नहीं? करे के ना प्रेक्टिस करो. बेसिक है जे एमसीक्यू तमे इक्वेशन थी सॉल्व करो छो ने ते हूँ आनाथी सॉल्व करूँ, कारण के मने एंगल फाइंड करवाना इजी क्या पड़े सर्कल में. तमारू तमे आ इक्वेशन ने जे याद राखो, हूँ आ इक्वेशन में आ एंगल ने याद राखूँ अने ए एंगल ने हूँ आवा सर्कल पर बतावीने एसएचएम ने फटाफट सॉल्व कर नाखूँ. पूछ ली देवांशी केम पेलो एक दाखलो तो वी अने ए वाळो. હવે એને ઇક્વેશન થી કોઈ બાપથી સોલ્વ જ નહીં, મરી જાય એમને મજા ટેકાવી જાય. તો એને સોલ્વ કરવું હોય ને તો આ ચકરડા બહુ કામ નહીં, એટલે આ ચકરડાની પાછળ પડેલો છે. સમજાયું? ખરેખર એક વખત પાછળ જોઈને આવજો, નિયમ જાય તો મને પાછા પૂછજો કે તમે સ્કૂલમાં જે ભણ્યા છે ને એની કરતાં મેં અલગ જ ભણાવ્યું છે. આ તમને છેલ્લે ભણાવ્યું, અમે પહેલાં ભણાવ્યું છે કે મારા માટે આ ઇક્વેશન બહુ મહત્વનું કે આ ક્યાંથી આવ્યું कि भाई एस एच एम में ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई की थी कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की थी. तो ये इक्वेशन क्या थी आपने मळशे? तो ये आपने कोणे आप्या? यूसीएम. यूसीएम एटले यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ये छे तो आ एस एच एम. चलो तो आ तो मैं भणावी दीधुं. वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई. वेलोसिटी आपने बताई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई. मीन्स के साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये याद रखना, ओमेगा आगे आ जाएगा. अब आपने पढ़ा हुआ होगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू प्लस और माइनस. तो आपका जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया था ना वो ऐसा आया था, ए ओमेगा कॉस. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे प्लस और माइनस ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई कॉस थीटा डेट इज इक्वल थीटा એટલે આટલું. એને અંદર લઈ જાઓ, અંદર ધ્યાન. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई मीन्स ये वाई है. देख तो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस.
ये वेलोसिटी और वाई का रिलेशन, और ये वेलोसिटी और टी का रिलेशन. તો અલગ અલગ ટાઈમ એકે મૂકીશ ને આમાં, એટલે તને એ ટાઈમની શું મળશે? વેલોસિટી. અહીંયા અલગ અલગ વાય મૂકીશું ને તો એ વાય પાસે કેટલી વેલોસિટી છે તે મળશે. સૌમ્યમાં પ્લસ એટલે કે પોઝિટિવ વાય ડિરેક્શનમાં છે. પોઝિટિવ વાય ડિરેક્શનમાં જવું મતલબ શું? તમે આમ અહીંથી ઉપર જાઓ, અહીંથી ઉપર જાઓ, આ બધામાં વેલોસિટી કેવી? પ્લસ. ઘણા બબુચકોને એ ખબર નથી કે આ ડિરેક્શન જોવાની. ઘણા એમ કહે ને કે અહીંયા સર વેલોસિટી નેગેટિવ નહીં આવે. નહીં જ આવે ને, ઉપર જાય છે. ઉપર એટલે પોઝિટિવ. અચ્છા, અહીંયા હોઈને નીચે જાય તો વેલોસિટી નેગેટિવ. हाँ भक्ति समझ में आ रहा है? अच्छा. v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर. આ તમારે બહુ સ્પીડમાં ચાલશે ચેપ્ટર. જો અત્યારે પેલા બે લીધા ને તો જીએમમાં 12મું ચાલુ થયું એટલે એ લોકો ભગાવવાનું ચાલુ કરે. આ વર્ષોથી હું જોઉં છું એટલે આ સ્પીડમાં ચાલશે એકદમ. તમે તો તે વખત જવાબ આપજો. તમે તમારાથી બધા ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય. વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હા તે તો એવું જ નથી. આના સ્પેશિયલ કેસ. સ્પેશિયલ કેસમાં y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એ, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ. जरा ध्यान आपको. y इज इक्वल टू 0 जब आपने लिखा यहाँ पे तो क्या आया? v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए ओमेगा. प्लस कब? जब ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस. लेकिन अगर मैं स्पीड लिखूंगा, स्पीड, तो स्पीड क्या आएगी? ए ओमेगा. और ये मैक्सिमम स्पीड है. क्यों? इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट ही नहीं हो रहा. એટલે આમાંથી કંઈ બાદ જ નથી થતું. તો આ સ્પીડ કેવી? હું કોન્સ્ટન્ટ, હું બે શબ્દ બોલતા આવડે બોલે એમ વિચારતા શીખો. તમે અડધી ભૂલ તો છે ને એબ્સન્સ ઓફ માઇન્ડને લીધે કરો છો પેપરમાં. પેપર આપતી વખતે મેં ગઈકાલે 12 પકડ્યા કે તું એલફેલ બોલે તો એમ બોલતી વખતે 2 મિનિટ આ જ તેવું, પછી કે એક્ઝામમાં જે આવે તે ટીક. હા, એક વખત એમ વિચારું કે આ શું છે? તો અચ્છા એ ઓમેગા કીધું તો એ ઓમેગા મેક્સિમમ સ્પીડ છે. કારણ કે એમાંથી કંઈ સબસ્ટ્રેક્ટ થતું નથી, કંઈ બાદ જ નથી થતું. સારું, પડી ગઈ. એન્ડ પોઈન્ટ્સ. હવે એન્ડ પોઈન્ટ્સ એટલે કયા? આને એન્ડ પોઈન્ટ્સ કહે. એન્ડ પોઈન્ટ પાસે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એ લખો કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू शो આવશે ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 0. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0. ને આપણને એમ ખબર છે કે એન્ડ પોઈન્ટ પાસેથી તો પાછો વળીને આવે છે એટલે મોમેન્ટરીલી એને શું થવું પડે? સ્ટોપ થવું પડે કે નહીં? તો ત્યાં બોલો વેલોસિટી કેટલી આવશે? વેલોસિટી પર સ્પીડ 0. વેલોસિટી 0 બોલો તો એ ચાલે. एक्सीलरेशन मैंने पढ़ा है डी बाई डी टी. v क्या आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5. तो ए डी वी बाई डी टी जब आप लिखोगे कॉस का डेरिवेटिव माइनस और एक ओमेगा आगे आ जाएगा. तो ये जो है ना वो ए और टी का रिलेशन कहलाता है. ए और टी नो रिलेशन. हाँ, लेकिन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये तो वाई है हमारा. तो ए और वाई का ये रिलेशन आएगा. इसमें भी 2 स्पेशल केस. क्या स्पेशल केस? हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है जिसे मीन पोजीशन बोली जाती है. इसे बोलते हम एंड पॉइंट्स. मीन पोजीशन के पास y 0 है तो एक्सीलरेशन 0. लेकिन यहाँ पे गलती मत करना. y इज इक्वल टू प्लस और माइनस वाई लिखोगे ना, एक प्लस वाई लिखा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, और माइनस वाई लिखा माइनस वाई सॉरी माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए. हंसराज
तो ए इज इक्वल टू माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है। तो हमारा जो ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम वो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। मोड ए मैक्सिमम क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। बड़ी खबर करेगा। क्या एक्सिलरेशन 0 થાય? અહીંયા કેટલું એક્સિલરેશન આવે, માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર, અને અહીંયા કયું આવે, પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર ઓર ઓમેગા સ્ક્વેર. વેરી હા. જો બીજી રીતે સમજો, અહીંયા વેલોસિટી 0 થઈ ગઈ, તો કોઈક તો જોઈએ ને એને ઉપર લઈ જવો, तो ये कौन था, एक्सीलरेशन। प्रोजेक्टाइल में आपने थ्रो किया, यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हुई थी, कोई तो होगा ना कि उसे नीचे लाएगा, कौन था वहाँ पे, जी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है, जी नहीं होता है, वहीं जी तो नीचे लाता है। કંઈક સમજાય છે તમને? સારું. સેમ ટુ સેમ મેં કોના માટે લખ્યું છે ખબર? એક્સ ડિરેક્શનની મોશન માટે. અહીંયા એ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ, તો વેલોસિટીમાં કોસનું ડેરિવેટિવ આવી રીતના યાદ રાખવાનું, માइनस साइन, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये किसका रिलेशन, वी और टी का। फिर v इज इक्वल टू प्लस वन माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, वहाँ पे वाई स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम केस आएंगे, मेन पोजीशन के पास वेलोसिटी, हाँ, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे है, आ वाली बधी वेलोसिटी पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन, અને આ વાળી બધી નેગેટિવ. પડી? ચાલો, એક્સિલરેશન પણ આમાં શું આવશે જોઈને શીખો, આ બધા ઇક્વેશન નહીં. ચાલો, અહીંયા તો x0 તો એક્સિલરેશન 0, बिकॉज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे एक्सिलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ, माइनस माइनस प्लस, હવે પ્લસ એ મૂકો, માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર. આ રીતે આપણે કરી શકીએ. હવે છે ને આ વાય એક્સિસનું ઇક્વેશન, એટલે અહીંથી હવે આખું આ ફેઝ, પીરિયોડિક ટાઈપ ને લગભગ અડધું ચેપ્ટર છે ને આપણે રવિવારે તો છે ને ઘણું બધું પૂરું થઈ જશે. પેન્ડ્યુલમ બેન્ડ્યુલમ રવિવાર મોક છે, પણ આપણે તો ટાઈમ જ 2 વાગ્યાનો છે ને ભાઈ, 2 થી 5. રવિવાર તો ક્યારે મિસ નહીં કરું.